Yes, good Good afternoon. afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, welcome to the IP class after the summer break as well as the exam break. So, first of all, we go through the attendance process. Then start the lecture. So, from first is 11A. Any student from 11A? Harsimrat. From anyone else? 11B. Samanpreet and Paru. Yes, from 11C we have Samardeep and Simrandeep, then Harshmeet, then we have Mr. Chetan, and yes, that's all I think so. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लगा नहीं रहे क्लासेस. Many of them I have seen for first time in the exam only, and after the exam they are again into the Mr. India mode. So they never get caught in the class. So they might be wearing that old watch to disappear from everywhere. So let's hope one day they will come into the class. Yadvinder. Clear? And you know the biggest difference, those who are joining in the class and those who are not joining in the class. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने C++ का कोड लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि वो गूगल में जाएंगे और जो कोड सबसे पहले मिल गया वो दो जी सर. और एक जो क्वेश्चन है हमारा वो जो था दैट वाज 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. एरिया ऑफ ट्रायंगल काफी बड़ा क्वेश्चन था. एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर. दो पेजेस का कोड लिखा हुआ है, एंड जिसने भी 2 पेज का प्रोग्राम लिखा हुआ सभी ने उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया, जो क्लास में मैंने पढ़ाया ही नहीं है. हल्का सा हमने डिस्कस किया था यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर, और मैंने सामने बता दिया कि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है. इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन यू कैन डू इट, दैट्स नॉट इशू. ठीक है, वो सभी ने किया हुआ है जो नहीं करवाया हुआ. और बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं. सिंपल इंटरेस्ट छोड़ दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दिया है, और so the benefit of attending the class is there definitely. Clear? So without wasting any further time, so let's move to the question paper, and we'll start with the MCQ part. So we will finish it. Yes, Ravneet. So my attendance, Ravneet for 11. होगी अटेंडेंस हो गया. चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप ही पढ़ो एंड आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the output of this expression? 3 into 1, and there are double stars in 3. That's exponential. What is the answer? Answer also, sir? Yes. So 9. 9 is the answer. Very good. So good attempt by and start by Ravneet. The same question now goes to Samardeep. ABCD. Sir, B. B. Okay, well done. And now the question goes to Samanpreet. Which option, beta? Yes, sir, B is correct. Sir, B B is 9. B is correct. Sir, इसका 3 आना है actually. 1 3 into 1. इसका 3 आना है सर. That's why I keep on asking the other. जैसे ये देखो इसमें क्या है, basically in this expression you know the 1 is 1 raised to power 3 है, और इसकी priority ज्यादा है. 1 raised to power 3 is having a more priority as compared to this multiplication operator. तो 1 raised to power 3 कैलकुलेट हो गया आएगा हमारे पास 3 आएगा. 1 raised to power anything is 1, and 1 multiplied by 3 you will get 3 as the answer. Clear? So I have already I think implemented this question. और जिस स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट इज प्लीज run these questions
on the Jupyter notebook, wherever you have any sort of doubt is there. So I have already implemented this question in the morning session. So this is the question. So you will get 3 as a whole. So moving to the second question. So that is a question about the data scientist. Yes, someone please padna beta question. Who is the data scientist? A. Mathematician. B. Statistician. C. Software programmer. D. All of the above. Sir, I think its answer is C. Sir, मैंने C किया था इसका. चलो कोई बात नहीं. That's not an issue. Good. But like let's we take some others view also. Yes, Mr. Chetan. तो पाइथन है, सॉफ्टवेयर है, तो मैंने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही कर दिया था, ज्यादा सोचा नहीं इस पे. चलो ठीक है, ज्यादा सोचा करो, इसमें क्या है. आपके पास क्वेश्चन आ गया, यू टेक योर टाइम. ये थोड़ी है एबीसी. मुझे पता है, मैंने देखो अगर आप वो टाइम वेस्ट किया है. नहीं, बिना क्वेश्चन को सोचे समझे आंसर करना है तो फिर तो एबीसीडी में से जो मर्जी आंसर करते जाओ. तो वो तो आपका वो तो सर थोड़ा सोच के प्रिसीजन लगाया था. चलो ठीक है. डेटा साइंटिस्ट है. सेम क्वेश्चन गोस टू मिस्टर हर्षमीत 11C. हर्षमीत सिंह. गुड आफ्टरनून सर. यस सर मैंने इसमें ऑल ऑफ द अबव किया था. ऑल ऑफ द अबव. यू सी हियर नो, this is a very nowadays this is the latest job which is being created for the last ये 8-10 साल से ये डाटा साइंटिस्ट का काम जो है that is very very popular these days. अगर आप बीटेक देखो, अब बीटेक भी शुरू हो गई है डाटा साइंस में. देयर वाज ए लास्ट ईयर देयर वाज ए प्रेजेंटेशन बाय प्लाक्शा यूनिवर्सिटी जो जिसका कैंपस अभी लेटेस्ट बना है यहाँ पे मोहाली में. तो उन्होंने ये बीटेक डाटा साइंस शुरू की है. तो डाटा साइंस में होता क्या है बेसिकली, दैट इज ए डाइवर्सिफाइड और मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया होता है. मल्टी डिसिप्लिनरी का मीनिंग है जिसमें मल्टीपल डोमेन्स आके काम करते हैं. जैसे यहाँ पे तो हमने मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लिखा है ना. अगर कोई डाटा साइंटिस्ट है जिसने बायो साइड पे काम करना है तो ही शुड नो दी नॉलेज ऑफ, जैसे कोई भी आपको पता होगा, जो आप तो ज्यादा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लाइक बायो साइड में क्या एक्टिविटी थी. अगर आपने कोई अकाउंटेंसी रिलेटेड काम करना है, अगर आपने कोई इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, सो यू नीड द रेलेवेंट नॉलेज ऑफ दैट वेरी डोमेन, जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हो. अगर आप डिफेंस में काम करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप बॉटनी फील्ड में करना चाहते हो, जूलॉजी फील्ड में करना चाहते हो, मेडिसिन फील्ड में करना चाहते हो, जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना है उस फील्ड की नॉलेज प्लस आपको इसके अंदर क्या है, एक स्टैटिस्टिशियन की नॉलेज. व्हाई वी नीड स्टैटिस्टिशियन नॉलेज? बिकॉज इसके अंदर क्या करना होता है, हमें डिफरेंट स्टैट्स के फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं. मीन, मीडियन, मोड एंड यू नो, ये तो हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा है. बाकी स्टैट के अंदर देयर आर मोर देन there are thousands of methods are there which are applied. स्कैटर प्लॉट है और भी बहुत सारा है इसके अंदर. और तीसरा ऑप्शन जो अभी चेतन ने बताया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर. अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर में क्या होता है, जैसे हम पाइथन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे एक डाटा साइंटिस्ट है, ही इज मेकिंग यूज ऑफ दी पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, तो उसको पाइथन के बारे में सारा पता होना चाहिए कि कैसे हमने पाइथन का कोड कैसे लिखना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. सो दीज आर दी 3 बेसिक स्किल्स दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय ए डाटा साइंटिस्ट. और जितने आईपी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को डाटा साइंस के बारे में पता होना चाहिए. डोंट थिंक कि हम आईपी की क्लास लगा रहे हैं और डाटा साइंटिस्ट के बारे में हमें पता नहीं है. दिस इज दी नाउ डोमेन विच इज कमिंग अप इन ए बिग वे. एंड जो आप जॉब्स फाइंड आउट करते हो, यू विल फाइंड दी जॉब्स इन दिस डोमेन इन ए बिग नंबर. ठीक है, अगर आप Amazon में काम कर रहे हो, Amazon के अंदर भी डाटा एनालिसिस बेस्ड मैक्सिमम जॉब्स हैं. सो ऑल दी बिग कंपनीज they are looking for, and not for the big companies also, but for the smaller companies also, they are looking for data scientists. So let's move to the, वैसे ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का एज इट इज पार्ट नहीं है, दैट इज वी आर जस्ट आपको कंसर्न शो करवाने के लिए ये मैंने क्वेश्चन डाला हुआ. यस चेतन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो आप. Which of the following data type is not supported by Python? That is slice. Yes, so slice is basically operation, it's not a data type. Yes, sir. So we move to the question number 4. Yes, Samanpreet, aap padho question number. Which of the following is an invalid statement? ABC equal to. हाँ, कोई बात पढ़ो ना, इसको ABCD में से बता दो. You just write the answer. हाँ. Answer is C. C.
that is a invalid statement. Okay, so which of the No sir. हम ये तो valid है बेटा, ये C तो valid है. हाँ जी sir. Yes sir. Sir invalid फिर sir I बताओ. think B. B, because actually क्या है कि C और B और C में कंपटीशन है, B के अंदर सेपरेटर नहीं है. जैसे A, B, C है ना, तो ये दिस सेपरेटर इज मस्ट. एक वेरिएबल से जब हमने मल्टीपल ऐसे हम वैल्यू असाइन करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की, तो उस केस में वी नीड टू मेक यूज ऑफ द सेपरेटर. तो कॉमा जो है वो सेपरेटर का काम करता है यहाँ पे. सो दिस C इज ए वैलिड ऑप्शन, B इज नॉट ए वैलिड वन. बाकी रेस्ट A and D they are also valid ones. ठीक है जी. सो सर हाँ जी, हाँ जी. जब हम मेरे को ऐसे भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि जो आइडेंटिफायर है उनमें स्पेसेस अलाउड नहीं है. तो यहाँ कहाँ स्पेस आ गई? नहीं, यहाँ यार, पे स्पेस, उसको अज्यूम कर सकते हैं ना, इसका आंसर हाँ, ऐसे हाँ. भी हम कर ही सकते हैं. हाँ, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि स्पेस इज नॉट अलाउड. ठीक है. Let's move to the question number 5. So who is going to answer this one? Who has not tried it out? Yes, Parul Rana. Question number 5. Which of these is not a core data type? First option list, second dictionary, third tuples, and fourth class. So correct answer is class. Yes, yes. So rest all the core data types we have studied. We have studied list, dictionary, and tuples. So class is also a data type, but it is not a core data type of Python. So if अगर आप में से जैसे हम IP पढ़ रहे हैं ना, ऐसे CBSE में एक सब्जेक्ट है पाइथन का और जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस में जब आप पढ़ोगे ना तो ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स उसमें आ जाएंगे. उसके सिलेबस का ये पार्ट है, ये क्लास हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. So if you study computer science, so you will find objects and classes over there. So let's move to the next question number 6. And yes, Harsimran, करो बेटा इसको टाइम. Sorry. यही था question number 6. Yes. Yes, sir. What data type is the object below? L equals to 1, 23, hello, 1. Yes. Sir, it's list. Yes. So we have already discussed a lot that whenever we find the square bracket, so they are used for list. So no need to discuss it further. Let's move to the next question. Is question. हाँ जी. सर एरे क्या होता है? एरे क्या होता है? उसमें एक ऑप्शन. हाँ जी. एरे जो है ना, एरे और लिस्ट में जो मेजर डिफरेंस है कि लिस्ट के अंदर यू सी हियर, यहाँ पे जो लिस्ट हमने यूज की है इस क्वेश्चन में, आई विल शो यू द लिस्ट हियर. ठीक है, ये जो लिस्ट है, अब इस लिस्ट में क्या है, जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप. पहले हमने नंबर ले लिया, फिर हमने स्ट्रिंग भी ले लिया इसके अंदर. आप इसके अंदर फ्लोट भी ले सकते हैं. बट जो एरे है, एरे कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. और भी टेक्निकल डिफरेंस है इसके अंदर. सो जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हमने स्टार्ट करना है, NumPy, सो दैट इज बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक अप द एरेज ओनली. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड एरेज. ठीक है. सो NumPy इज मतलब लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं और एरेज में सिंगुलर. हाँ, ये एक डिफरेंस है. सो वी हैव अदर डिफरेंसेस आल्सो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट वी हैव. Homogeneous and heterogeneous elements. So let's move to the next question. Question number 7. So the question number 7, I have to ask from this side, refresh the list. Yes, Simrandeep. पढ़ो बेटा. Yes, Harshmeet. In order to store values in terms of key and value, we use what core data type? Sir, it's dictionary. Yes. So we
It's a very basic elementary sort of a question. Yes, next question भी आप ही आंसर करो. Yes, question number 8. Select option that print the output hello dash how dash r dash u. सर इसका था फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, एक बार फिर से सोच लो. नहीं सर, सेकंड. B is the right option for this one. यस सर. Because यस सर. B में क्या है, ये concatenate हो जाएगा string. इसमें भी D is almost similar, but D में last में जो है R Yes, और U sir. के R और U आपस में मिल जाएंगे. You will not find a hyphen over there. ठीक है, so B is the correct answer here. ठीक है, I think यहाँ पे जो प्लस है, यस चेतन आप बताओ ये प्लस क्या काम करता है यहाँ. कंकैटिनेशन कर देगा बस. Yes, yes, yes. So this is basically here for concatenation operation. So next we have the question number 9. और मेरे को इसकी explanation बता देना बेटा, थोड़ा सा elaborate करके बताना. So next is अबे सिंह, आप बेटा करो इसको डिस्कस. Question number 9. सर इस क्वेश्चन में 4 + 3 मॉड्यूलस 5 है. मॉड्यूलस की क्योंकि वो मतलब मॉड्यूलस को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तो 3 मॉड्यूल 5 होगा 3, क्योंकि 5 का जो इसका रिमाइंडर आएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा. Yes, yes. And what will be the answer? 4 + 3 हो गया 7. 4 Yes. + 3 7. Yes, yes. So basically, here 3, because this percentage and remainder operator is having a higher priority. So this part will be evaluated first. So 3 divided by 5, we will get here 3 as remainder, because remainder operator give you the remainder. Clear? 3 को अगर हम 5 से divide करके आप manually भी check कर सकते हो. So you will get 3 as a remainder itself, and then this 3 will be added to this 4, and 7 we will get as the answer. So yes, yes. अभी आप next question भी आप ही discuss करो. 10th question. Which of the following expression is example of type conversion? First सर इसका, क्योंकि उसी में हम 3 को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं. हाँ, बाकी सब में या तो वो पहले से दिए हैं या फिर वो इंटीजर ही है. Yes, 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 good one. So that is, now here we are converting this 3 to a float 1. So here we are using, basically this is the example of explicit type conversion. So then we have a bit sort of a tricky question now, question number 11, and yes, Sumit Kumar. Yes, Sumit, करोगे attempt इसको? Yes, चलो कोई बात नहीं. Let's move to the Samardeep. बता देना ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट कैसे होगा. कोड दिया हुआ है सर, कोड एक्सप्लेन कर दूं सीधा रीड करने की जगह. एक्सप्लेन ही करना है इसमें. यस सर, x की वैल्यू हमें 2 असाइन कर दी है, उसके बाद उन्होंने दिया है x + = 1, यानी कि इसका मीनिंग होगा x + 1 = x. तो 2 + 1 इज एक आ जाएगा 3, वो 3 प्रिंट कर देगा. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3 + 1 = 4. तो सर हमारे पास 3 4 ऑप्शन था. लेट्स मूव टू दी, इसके लिए हल्का सा वी विल गो टू दी Jupyter notebook. Question is here. This is ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास जो भी एक्सप्लेन किया समरदीप ने. सो इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू 2 है, दिस इज द लूप वी हैव, और रेंज से क्या होगा, रेंज से i की वैल्यू सेट हो जाएगी 0 and 1, बिकॉज 2 इज द अपर लिमिट इन द रेंज. और जब x की वैल्यू 2 है तो 2 और x = x + 1, तो ये इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी when the value of I is 0. तो फिर से ये 3 प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा. अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो 1 के बाद फिर से x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब x की वैल्यू 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4. So you will get 3 and 4 as the output here. So it's very important that you focus on the range function, because if you don't understand the working of range, so you may get the wrong answer also. So these are the questions which have been solved, and this is the question.
So let's move to the again coding based question is 12th. Yes, Chetan करो आप try इसको. बता दो इसका बस आंसर बता दो ABCD में से क्या आएगा. Don't read the question. The answer will be C. C. Very good. So let's take the other views. Yes, Harshmeet. Sir, its answer will be first option. First option. Okay. Then we have few. Simrandeep. बताते जाओ ABCD में से. हाँ बताओ. Sir, A option. A option. A option. सर एक सेकंड मैंने गलत बता दिया. सही कह रहे हैं क्योंकि वो जब स्ट्रिंग को प्रिंट करता है तो वो सिंगल आते हैं. आपने हॉलीडे वर्क में भी वो इंडिया वाला दिया था मेरे को यार. चलो ठीक है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मैंने सही मान लिया. नाउ गो टू दिस जुपिटर नोटबुक. दिस इज द जुपिटर नोटबुक. ये किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही है और ये इसकी आउटपुट है. आप इस आउटपुट को एक्सप्लेन कर दोगे और दिस आउटपुट इज कमिंग अप हियर. तो मैं कर दूं. हाँ तेरे को पूछा मैंने. तो जब हमें स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन की तो वो पहले आई जो हमारा वेरिएबल है वो स्ट्रिंग की वैल्यू में जाके चेक करेगा जितने भी वैल्यूज हैं. और हमें पता है लूप टर्न बाय टर्न जब तक एलिमिनेट नहीं होता तब तक चलता रहता है. तो पहले वो फर्स्ट वर्ड माई में जाएगा. फिर स्ट्रिंग की एक खासियत है वहां पे वो सिंगल वर्ड पे जाता है. स्पेसिस को भी वो वर्ड ही कंसीडर करता है. तो वैसे तो ये सीधा आ जाना था नीचे जैसे स्ट्रेट लाइन में आ जाना था पर आपने एंड फीचर यूज किया इसलिए वहां पे कॉमास आ गए. कॉमा क्यों आ गए हैं? why the commas are coming here? सब बिकॉज़ आपने एंड में कॉमा साइन किया है. अगर वहां पे स्पेस करते स्पेस आ जाती. चलो ये भी ठीक है. ये लास्ट में कॉमा क्यों आ रहा है? why this comma is coming up in the last? एक ऑप्शन है ना यहाँ पे. आप यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो there are two sorts of options are there like here. so एक में लास्ट पे कॉमा है, एक पे लास्ट में कॉमा नहीं है. so how you will answer that the comma will appear here? इसका नहीं मेरे को पता. Yes, I don't know. yes, Harshmeet will make it right. Yes, Harshmeet. सर जब लास्ट में आई एस को उठाएगा तो पहले आई एस प्रिंट होगा, उसके बाद जो हमने लिखा है कि एंड विद कॉमा, उसके बाद कॉमा प्रिंट होगा, फिर हमारा लूप खत्म हो जाएगा. Yes, yes. So basically this comma is associated with ये जो हम basically print से क्या होता है, it goes to the next line. अब हमने नेक्स्ट लाइन की जगह क्या कर दिया, उसकी जगह हमने कॉमा यूज कर दिया. सो व्हेनेवर दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो इसके साथ में ये एस के बाद का ये कॉमा भी आ जाएगा साथ में, बिकॉज इट इज गोइंग टू डू दी नेक्स्ट लाइन. तो वो करेगा ही. अब नेक्स्ट लाइन में हमने एंड की जगह क्या रख दिया, वहां पे रख दिया कॉमा रख दिया. सो डेफिनेटली द कॉमा विल कम एट दी दिस लास्ट प्लेस आल्सो. तो ईच ऑप्शन शुड बी क्लियर टू एवरीवन. So let's move to the next question is on yes, Samardeep. Yes, Simrandeep. Sir, question is, which is the correct form of declaration of dictionary? The answer is A option. Yes. So here we have to just look at the syntax properly. In the first option, in the second option, you are finding out this semicolon is used. So we have to use colon to differentiate between the key and the value. Clear? And in the third option, what is there in third option? Third option में हमने square bracket का use किया. So for dictionary we have to make use of curly brackets. And in the last ये हमने ये colon का use नहीं किया to differentiate between the value and key and value पे. ठीक है जी. So let's move to the question number 14. तो yes, सिमरनदीप आप ही करो इसको try. Question number 14. हाँ जी सर, एक मिनट. हाँ कोई नहीं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो एंड देन एक्सप्लेन हाउ यू विल गेट द आउटपुट.
Sir, the answer is 4. The answer is Sorry, 4. 2. Two. 2. हाँ, कैसे आएगा ये भी बता दो। सर पहले उन्होंने साइन की हुई है वैल्यू x को 0, a को 0, b को -5, तो उन्होंने बोला इफ a इज ग्रेटर देन 0, लेकिन a इक्वल टू 0 है, तो फिर ये पूरा वर्क करेगा ही नहीं। उसके बाद सीधा वो else पार्ट पर आ जाएगा, तो उन्होंने बोला else इज इक्वल टू x + 2। अभी x की वैल्यू 0 है, तो 0 + 2 = 2, तो x की वैल्यू 2 Yes, प्रिंट हो जाएगी। very well explained by Simrandeep. So let's move to the question number 15, and let's say who has not tried it out. Yes, Harsimrat. Yes, this is the question number 15. Just we have to give the answer in true and false. Sir, true. True. Why true? True is the correct answer, but my question is Yes, why sir. true? Why true? Sir, here they have assigned the value of A as 12 and B as 5, and then they have applied the condition to concatenate both of them. This is not concatenation, this is addition. Concatenation is different, addition is different. ठीक है? Yes, sir. So when हाँ, तो ये true क्यों चलेगा? Why not false क्यों नहीं चल रहा यहाँ पे? सर क्योंकि उन्होंने arithmetic operator use किया है and the value will come out. Condition true हो जाएगी. Okay, okay. Someone else wants to give the different answer. कोई try करना चाहता है यहाँ पे? Why we will get here the true as the answer? Anyone wants to make it try? Yes, Abhi Singh. Yes, तो Abhi. क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, उन दोनों में एडिशन पॉसिबल हो सकती है। एडिशन का अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है दोनों इंटीजर्स में। अगर तो फ्लोट भी होती, अगर फ्लोट भी होती तब भी हमारा ये ट्रू ही आंसर आना। That's not a issue. सर वो ये फ्लोट और इंटीजर में हो सकती है, अगर स्ट्रिंग होता तो वो नहीं आता, तो एरर आ जाता यार ये फिर वो फाइनल वाला रिजल्ट नहीं होता। क्वेश्चन ना किसी और वे से चल रहा है एंड यू आर आंसरिंग इन सर बूलियन के कारण, बूलियन डेटा टाइप के कारण। नहीं बूलियन भी नहीं है। like you see here, I will explain this one ना। इसमें क्या है बेसिकली, whenever this expression is evaluated, जब भी ये expression evaluate होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12 + 5 ये 17 हो जाएगा। whenever you have a value 1 or more than 1, जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन में 1 या more than 1 आता है तो उसको वो ट्रीट करता है ट्रू वैल्यू, और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी तो तब वो फॉल्स प्रिंट करेगा। We're getting or not? Let's move to the Jupyter notebook and try and test a few different options here. यहाँ पे आ गई, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू कितनी है 15, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -3 आएगा। अब -3 को भी ये ट्रू लेके चलेगा, कोई भी नंबर जब तक 0 नहीं आता तब तक वो उसको ट्रू ही रखेगा। We're getting or not? You see here, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। अब आप यहाँ पे 12 and 12 रख लो दोनों। जब हम 12 and 12 में से 12 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 0। सो यू रन दिस कोड, सो यू सी हियर, नाउ यू आर गेटिंग फॉल्स एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और उसका रिजल्ट 0 आता है, दैट इज ट्रीटेड एज फॉल्स। और अगर उसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, 1.1 से कुछ भी वैल्यू आ गई हमारे पास अदर देन 0, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसमें कोई अर्थमेटिक कोई चीज को वो कंसीडर नहीं करता। ठीक है सर, ये बूलियन के अंदर ही तो आते हैं, बूलियन की 2 ही वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन की जब बेटा, तब करता है जब अगर तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है 17, तो आपने उसको उसमें 17 को आपने ट्रू ट्रीट करना है या फॉल्स ट्रीट करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। बूलियन तो सही है आपकी बात, आंसर तो हमें ट्रू एंड फॉल्स को करना है, बट किस चीज को ट्रू लेना है, किस चीज को फॉल्स लेना है, उसकी भी तो क्लैरिटी चाहिए हमें। अगर रिजल्ट में 17 आ रहा है तो 17 क्या चीज है, सो 17 एनी नंबर विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। इफ यू गेट 0 एज एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। सो लेट्स मूव टू दी next question.
So yes, so next is we have question number 16. Yes, Harshmeet, आप करो try इसको. Question number 16. Yes, Samardeep wants to say something. सर आंसर ही करना, आंसर क्या है? सर आंसर ही करना था, बोल बता दूं? हाँ हाँ बोलो बोलो. सर इसका बी ऑप्शन आएगा. B है They have because assigned value. yes yes. So 10 is for P, 20 is for Q, and 30 is for R. So it's very straightforward sort of a question is. So next is question number 17. Yes, Harsimrat, आप करो बेटा try. Sir, option B. Option B. Why the option B is the answer? सर क्योंकि 1:3 जो वैल्यू दी हुई है तो ओनली फर्स्ट 2 वैल्यूज प्रिंट करेगा, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स लिटरल प्रिंट. फर्स्ट 2 नहीं होगी, बेसिकली सेकंड एंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड अगर हम एक्सप्रेशन में चले जाएं, ये जो है यहाँ पे yn, बेसिकली y की इंडेक्स वैल्यू 1 है. आपका आंसर सही है, यू हैव गिवन द राइट आंसर. क्लियर. So 0 is the index value of P, 1 is the index value of Y, 2 is the index value of N. So 1 to 2 will be part of the output and rest will be discarded. So YN is the correct answer. So let's move to the next question, 18th. Yes, Simrandeep. हाँ जी सर. Yes. बता दो आंसर, बता दो ABCD में से जो भी है, whatever. सर सेकंड ऑप्शन. Second, clear. So first is 5 raised to power 2, 25. Third is this option is 5 raised to power 3, 125. So this is the right answer. And let's. Yes, Harshmeet. सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी. सर मैं लीव करके करूँ, एक फ्रीज होगी स्क्रीन सर. तुम्हारी स्क्रीन फ्रीज होगी, कोई बात नहीं है. whatever the option you want to, आप कर लो, चाहे आप एग्जिट करके आना, that's your issue. ठीक है जी. So let us, we will try this question. Yes, चेतन आप करो बेटा, इसको थोड़ा समझा के करवाना इसको. Question number 19. सर इस क्वेश्चन ना प्रॉब्लम आ जाएगी. क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? थर्ड ऑप्शन होगी, द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड. अच्छा, क्योंकि सर मैंने पर्सनली भी ना 2 दिन कैसे ट्राई किए थे. ये एरर्स की सर टाइप में आता है. चलो कोई बात नहीं. नहीं आप मेरे को टाइप में था. आप मेरे को ये बता दो कि एरर क्यों आएगा, व्हाई देयर विल बी एरर, क्यों आएगा एरर? सर क्योंकि जो हमने इसमें हमारे क्या कहते हैं उनको ऑपरेटर्स को यूज किया है ना, उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे एरर जरूर आएगा. हमारी डिवीजन और जो पाइथन करेगा उसकी उनको उसने डिफरेंट तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है. अगर हम उसको चेक भी कर ले तब भी शायद ऐसा ही आएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का शायद सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का किया था. हम और कोई को करके देखें, बोर्ड मार्क्स में भी इसमें प्रॉब्लम आती है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर. यस मिस्टर अभय सिंह, अबे आप बताओ बेटा क्या है इसकी आउटपुट आएगी और कैसे आएगी, इसको बता सकते हैं कुछ? सर इसकी आउटपुट आएगी 117. 117. यस, कैसे आएगी 117? सर क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे में भी. हाँ बताओ. उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो 5 हो गया. 5 हो गया. डिवीजन आएगा. हाँ डिवीजन आएगा. 36 डिवाइडेड बाय 4 हो गया हमारा, 9 हो गया. हाँ 9 into 5 into 4. 9 into 5 into 4 हो. उसके बाद सर उसके बाद मेरे को 180 आता है इसका आंसर. इसका आंसर 180 आता है जो आपने बोला यहाँ तक. और इसका 182 था. 180 plus 2. हाँ 180 plus 2. मेरे को खुद को. So yes, that's how the expression will be evaluated. 3 plus 2 5, and then is all the operators up to this one, they are having at the same priority. So 36 by 4 9, 9 into 5 45, 45 into 4 180 plus 2, because plus is having the least priority. That's why it comes at the end.
ठीक है जी चेतन, थोड़ा अपना रेक्टिफाई करो, एरर ना निकालो इतनी जल्दी। सर Look इसका at the- आंसर आएगा 182 आएगा। हाँ 182, इसको एग्जीक्यूट 182 करना आज। आएगा। करूंगा सर, अब तो करूंगा। हाँ करके देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। यस अभय सिंह, क्वेश्चन नंबर 20। क्योंकि इस रेंज में से हमने थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू जिसका इंडेक्स 3 है और एक जिसका इंडेक्स 4 है वो लेकर आने, तो बी हो गया। कौन सा ऑप्शन है ABCD में से? सी। C. So BU will be the output. So based on the index value, 3 किसकी index value है? So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Only 2 characters will be the part of the output, 3 and 4. The index value with 3 and 4. यस सर। Okay जी, let's move to the 21. 21 भी आप ही आंसर कर दो। सर इसका आंसर इंटीजर है क्योंकि 10 एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो B और C में से कौन सा है? सर इसका आंसर आएगा सर, ये तो इंटीजर ही आएगा। ओ बेटा B और C दोनों ऑप्शन इंटीजर है, कौन सा INT वाला आएगा या ऊपर वाला आएगा? हैं? सर वो मेरे को नहीं पता कि वो इंटीजर, मैंने जब पाइथन में किया था 3 ऑप्शन आया था, थर्ड ऑप्शन आया स्पाइडर में जब मैंने किया हाँ मेरे को वो नहीं पता। थर्ड ऑप्शन INT वो ले लेता है। INT इंटीजर इज नॉट द कीवर्ड, INT इज द कीवर्ड इन पाइथन, ठीक है। तो यस सर, ये दोनों इंटीजर एंड पाइथन में INT वाला इंटीजर लेना है, ठीक है जी। Yes, sir. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर Sir? 27। हाँ जी हाँ जी। सर बट हमें तो डेटा टाइप पूछी है, हमें आउटपुट थोड़ा ना पूछी है। डेटा टाइप तो इंटीजर ही है सर, INT तो टाइप कन्वर्जन के लिए जो बेटा फंक्शन हमने यूज होगा पाइथन के वो। कंटेक्स्ट में बताना है ना, वी हैव टू टेक, वहां पे फ्लोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर फ्लोट है ऑप्शन, कहीं पे रियल नंबर आ गया, कहीं पे फ्लोट आ गया, तो आप रियल उठाओगे या फ्लोट उठाओगे? वी विल बी पिकिंग अप द फ्लोट वैल्यू, बिकॉज हमने पाइथन के कंटेक्स्ट में बताना है उसको, हम वहां पे उसको मैथमेटिक्स के वे में आंसर नहीं करना वहां। यू आर गेटिंग और नॉट? इंटीजर नहीं के sir, लिए but- हाँ जी हाँ जी। सर मैं बोल रही हूँ कि जो इंटीजर पूरा वर्ड लिखा हुआ है वो हमारे पास डेटा टाइप का नेम है, और जो हाँ। INT हम यूज करते हैं वो तो टाइप कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। हमें अगर उन्होंने पूछा होता कि इसका आउटपुट क्या है, तो आउटपुट तो सर वो INT देता है पाइथन। बट सर हमें तो डेटा टाइप का नेम पूछा है ना, तो जैसे हमने आंसर्स में भी लिखा हुआ है तो INT थोड़ा ना लिख रहे हैं हम आंसर्स में भी, आंसर में तो पूरा वर्ड ही लिख रहे हैं हम। नहीं देखो आप एक चीज देखो, जब भी मैं ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, यहाँ वहां पे कोड भी लिखा हुआ है, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट द डाटा टाइप ऑफ दिस वन, ठीक है। तो आप इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास क्या इंटीजर लिखा आएगा या INT लिखा आएगा? देखो कोड भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे साथ में। यू आर गेटिंग और नॉट? सर बट उन्होंने डायरेक्ट आउटपुट थोड़ा पूछा कि आउटपुट बता दो। उन्होंने क्या है, ये मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, ये आप उन्होंने बोल रहे हो, दैट इज नो यू टेक, अगर आपको इंटीजर, अगर आपके कंफ्यूजन वे से आपने इसका आंसर कर दिया है, वो टेक इट एज ए डिफरेंटली, बट यू लुक एट द कोड इज गिवन। अगर वहां पे वेग वर्ड होगा ना, वहां पे प्रिंट लिखा नहीं हुआ, वहां पे टाइप लिखा नहीं हुआ, सो देन वी कैन डिस्कस इट इन अ डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी this is the question number 22nd. Yes, कभी किससे सबसे कम पूछा है? यस रवनीत। Sir, इसका आंसर just screen. If the ABCD output of the following code, so B part is the answer. B part is 4.0. clear, because A is of we are having in fractions, so you will get the answer in float only, but you get the integer division. Clear? Yes, next का भी आंसर आप ही कर दो, क्वेश्चन नंबर 23. Yes. So which of the following symbols are used for comments in Python? So Fourth. Clear? So we use hash symbol for commenting. Clear? और commenting का purpose क्या होता है Python में? What is the purpose of commenting in Python? क्यों करते हैं हम comments in Python? Yes. Yes. Someone Preet. Someone. यस सर, सर कमेंट्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो प्रोग्राम रीड कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लाइन का हमने इसे क्यों लिखा है ऐसे। Yes. So the other word that we use for this is we use the comments for documentation purpose.
Clear? When the program size goes quite bigger, so then the use of these comments comes very important. Clear? So these were the few of the MCQ questions, and then we switch over to the few. We'll discuss few questions of 2 marks questions also. This is form 1. This is form 2. टू मार्क्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, दैट इज टू गेट द एवरेज ऑफ 3 numbers. Most of students have done this correctly. What do you mean by keywords? अब keywords में क्या है, that is most of the students have given the right answer. बाकी कईयों ने कीवर्ड जो है वो गूगल का कीवर्ड उठा लिया है, ठीक है। अब गूगल का कीवर्ड कुछ और बात करता है, हम पाइथन के कीवर्ड की बात कर रहे हैं, वो कीवर्ड को कहीं और घुमा के ले जाएंगे, ठीक है। जो गूगल का कीवर्ड है वो कीवर्ड बेस्ड सर्च की बात करता है। तो कीवर्ड बेस्ड जो सर्च होती है, देयर आर डिफरेंट सर्चिंग मैकेनिज्म, उसमें एक मैकेनिज्म होता है कीवर्ड सर्च, तो वो उस वे से इसको आंसर कर रहे हैं। सो गिव द आंसर ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाइथन। Then we have what are the Python's built-in code data types. So most of the students have given the correct answer. List, we have a dictionary and so on. Clear? Then we have the what is the use of this range function. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, so एक हमने ये छोड़ दिया 27. What do you understand by the term immutable? So immutable के केस में the people have given the right examples also in the form of tuple also. Clear? जो भी है हमारे पास string है, integer है, float है, they are all the examples of immutable. 2 marks के क्वेश्चन के अंदर always try to give 1 or 2 example. आपने एक वर्ड ही लिखना है वहां पे tuple, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा that he is clear about the immutable concept. वहां पे इतनी बड़ी बड़ी definition लिखते हो, साथ में एक वर्ड ऐड कर दिया करो कि इसकी एग्जाम्पल क्या, ठीक है। सिमिलर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रेंज वाला क्वेश्चन है, तो ये आप डेफिनेशन ना लिखा करो रेंज की, आपने डेफिनेशन लिखी है, दैट्स वेरी गुड, बट ऑलवेज राइट द सिंटैक्स ऑफ द रेंज। देखो प्रोग्रामिंग और बाकी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट वे से चल रहा है, ठीक है। आपको बायो में क्वेश्चन आ गया, आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, दैट्स इट सेपरेट इशू, बट इन पाइथन जस्ट ट्राई टू गिव द सिंटैक्स। एग्जामिनर को वहां देखते सार पता चल जाएगा कि इसको रेंज का आइडिया जो है, कंसेप्ट इज क्लियर कि ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये उसकी स्टॉप वैल्यू है, ये इसकी इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं उसके। So try to include these points in the upcoming exams also. जिसने किया है, that's fine. Only few students have given the syntax of range. ठीक है जी। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे else and else if construct में क्या डिफरेंस है, again you can give the example in the form of the flow chart बना सकते हो या syntax बता सकते हो दोनों। Then the question number 30 is, yes हर्षमीत पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 30। So write a program that asks the user to enter one's name and age, print out a message addressed to the user that tells the user the year in which he or she will turn 100 years old. तो क्या मैकेनिज्म फॉलो तो करेंगे? पहले सर उसका नेम एंटर करवाएंगे, फिर एज एंटर करवाएंगे, और फिर उसको उस एज को हम 100 में से माइनस करेंगे और फिर 2021 में ऐड कर देंगे, तो वो शो कर देगा कि कब वो 100 इयर्स में आएगा। गुड गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31, यस समनप्रीत आप बेटा पढ़ना इसको और आंसर करना इसका क्या होगा। Write a program to repeat the string good morning n times. Here n is an integer entered by the user. Yes. सर पहले हम n की वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद हम एक वेरिएबल में गुड मॉर्निंग लिख देंगे, तो सर फिर हम प्रिंट में गुड मॉर्निंग इनटू n कर देंगे। जो वेरिएबल लिया है तो फिर उसी को यूज कर लेते हैं हम, गुड मॉर्निंग लिखने की क्या जरूरत है। हाँ जी, यस सर। हाँ, so okay, very good, good. So let's move. The idea is correct, whatever the idea you have shared. Question number 32. So you have to just mention the whether this is syntax, logical or runtime error. So both of them are the which type of errors? Logical ones. Clear? First one division by 0, second is also division by 0. And सर ये रनटाइम
सर रन टाइम भी है? रन टाइम है, रन टाइम, sorry, सर रन टाइम both of them are runtime errors, not logic. Clear? And next is write a program to find the highest two values. इस क्वेश्चन में मैक्सिमम गड़बड़ है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दो वैल्यूज के ऊपर फोकस किया हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो एक वैल्यू के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। तो हाईएस्ट टू वैल्यू मींस एक हमने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक हमने सेकंड लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो काफी स्टूडेंट्स ने गलती की है। सो इट्स बेसिकली द पॉइंट दैट वी हैव टू इंप्रूव इन द अपकमिंग एग्जाम्स। थोड़ा क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से एक बार रीड कर लिया करो। 80-90% ने बिगेस्ट वैल्यू ही फाइंड आउट की है इसमें से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये हमारा लास्ट वाला लेशन था हाईएस्ट नंबर में, इसमें हमें लिस्ट का भी जो इनपुट वाला फॉर्मूला होता है कि एक नंबर दे दिए, इतने लिस्ट में एलिमेंट है, जैसे मर्जी कर इनपुट जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। चाहे आप एक अपनी साइड से लिस्ट ले लो या आप इनपुट, बिकॉज दिस इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सो यू नीड नॉट टू गो इनटू टू मच डिटेल्स। आप एक लिस्ट लो, उसके ऊपर आप उसको सॉर्ट कर दो और हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को आप वो प्रिंट करवा लो। सर वैसे हाईएस्ट का ऐसे ही हमने मैक्स वैल्यू ले लेनी थी, कोई मैक्स नंबर लेना, उसका रेंज से करना था, जो n-1 लिस्ट है, n-1 n-2। जैसे मर्जी कर लो बेटा, बट बेस्ट मेथड इज सॉर्ट कर लो आप एक बार लिस्ट को। जब एक बार लिस्ट सॉर्ट होगी तो सेकंड लास्ट और लास्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट विल बी दी 2 हाईएस्ट एलिमेंट्स। बाकी इफ यू हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट मैकेनिज्म आल्सो। ठीक है, ओके सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? और किसी की अटेंडेंस है? मेरे पास तो बड़े कम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा? कोई किसी का क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन यू हैव? Clear? So tomorrow we will discuss 3 marks and 5 marks questions, and side by side when the questions are over, we will start the next unit, that is the NumPy. Clear? And that will be definitely important because आप लोगों के senior ने ये NumPy नहीं पढ़ा हुआ, so this is a basically the addition that has been made by the CBSE this time. Clear? So thank you very much for joining the session. Tomorrow we will discuss the 3 marks and 5 marks questions. Thanks, madam.